Hello. Should I start the class? Nalanda Academy. I'll wait like for 3 minutes more. Okay, let's start. Uh, I was under the assumption कि क्लास आज 1.5 आवर्स की होने वाली है, बट मुझे पता चला कि क्लास 1 घंटे की है। तो आई थिंक इंद्रायणी ने बताया होगा कि आज 30 मिनट्स का कुछ क्विज था, बिकॉज 1 to 15 जनवरी का पीडीएफ शेयर कर दिया गया है, एंड 60-70 पेजेस उसका पढ़ा भी लिया गया था, 40-50 पेजेस आई गेस। बट बिकॉज द क्लास इज ऑफ 1 आवर्स, ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि मैं पढ़ाऊँ भी और आज क्विज भी ले सकूँ। तो द क्विज पार्ट विल बी टेकन by Indrani on Thursday, or if I take the class, it will be taken Thursday by me, right? So we'll do the 15th and 31st today. बाकी का जो बच जाएगा next Thursday or and this and Sunday, right? So we'll start. Uh, okay. So this is from January 15 uh, up until January last. So I'll just scroll down. If you have any doubts, you can read this. Everything that is important have been bolded by the material team, have been in bold, marked in bold and by the material team. So if you have any doubt, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है ये सब, तो you can just ask me. Unmute your mic or like chat in, type in the chat box. ठीक है? So yes. So और अगर कुछ बिकॉज ये मैंने नहीं बनाया, अगर मेरे को कुछ लगता है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो आई जस्ट टेल यू कि ये याद मत रखना, राइट? कोविड 19 परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया की रैंक
नीचे नीचे आएगा कि द इंडिकेटर्स किसने कंपाइल किया है, दैट इज सिडनी बेस्ड लो इंस्टीट्यूट, एंड ऑफ कोर्स रैंक वन किसकी है एंड रैंक लास्ट किसकी है. दीज आर द इम्पोर्टेंट, these are the important things that is that you'll have to remember in every statistics जो भी main statistics है, right? So I'll give you like 2 3 minutes to like read this and then these are the 6 indicators जिसके बिहाफ में, जिसके परफॉर्मेंस में कंट्रीज को रैंक किया गया था. 6 इंडिकेटर्स है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है कौन से इंडिकेटर्स है एग्जैक्टली, वो तो याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. तो 6 indicators है, that is for your information. You don't have to remember these indicators or how many indicators were there, right? Okay, this the result rank one was New Zealand because उनका performance in handling the COVID-19 was way better than the rest of the countries. So you'll have to remember New Zealand. And the position of India, 86 out of the total 98 countries, right? ये याद रखने की जरूरत है कि लास्ट कौन आया था. ब्राजील लास्ट आया था. यूएसए याद रखने की जरूरत नहीं है. यूएसए इसलिए मेंशन कर दिया गया बिकॉज सबसे बड़ी कंट्री है एंड सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री, वन ऑफ द सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इसलिए. This thing you can like read once कि श्रीलंका was the best performing nation in South Asia. India is a part of South Asia. तो ये चीज बस याद रखने की, मतलब इतना मैं ये ढूंढूंगा कि इतना जरूरी है. बट द थिंग इज यस कि हाँ आ सकता है क्वेश्चन कि साउथ एशिया में अगर इंडिया की रैंक 86 थी तो बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन कौन सा था. तो श्रीलंका. श्रीलंका की एग्जैक्ट रैंक क्या है वो याद रखने की जरूरत है. और किसी को कुछ छूट जाए बुरा या फिर कुछ समझाना हो, डू टेल मी, एक बार मैं वापस ऊपर जाकर समझा दूंगा. ऑल ऑफ दिस यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस, बट एक स्टोरी की तरह है ताकि बेटर समझ आए, इसलिए डाल दिया मैंने, हटवाया नहीं किसी मटेरियल टीम से. तो यू कैन रीड दिस एक बार जल्दी जल्दी से. This is news number 2. Supreme Court dismissed Aadhaar India petitions. I'll ask you 2 3 stated questions इसमें से once you have read all this.
So yes, issues involved whether the decision of the Lok Sabha Speaker under Article 110. Article 110 is money bill. If anyone wants me to explain what a money bill is, मुझे एक बार बता दो chat box में, वरना I'll assume कि everyone knows what a money bill is. So yes, Article 110 में money bill है, तो this is the issue involved कि whether the decision of the Lok Sabha Speaker under Article 110 subsection 3 of the Constitution to certify a bill as money bill under Article 110 is final or binding, final and binding, or can it be subject to judicial review? Okay, I'll explain money bill in a bit. पहले वो करने के बाद कि और कैन मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें सिंपल भाषा में समझाया जाए कि लोकसभा के पास पावर होता है, लोकसभा स्पीकर के पास पावर होती है मनी बिल डिसाइड करने के लिए कि कौन सी बिल मनी बिल होगी और कौन सी बिल मनी बिल नहीं होगी. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बिल. जनरल बिल होते हैं, मनी बिल होते हैं अंडर आर्टिकल 110. देन दे आर फाइनेंशियल बिल अंडर 117 उरा. पर पावर किसके पास है ये डिसाइड करने की कि कौन सा बिल कौन सा होगा, वो लोकसभा स्पीकर के पास है. तो इशू ये था कि क्या एक बार लोकसभा स्पीकर ने कुछ डिसाइड कर लिया कि ये मनी बिल है, क्या उसको कोर्ट में कोर्ट के पास जाके उसको चेंज कराया जा सकता है कि क्या कोर्ट के पास वो पावर है कि कोर्ट बोल सकता है कि नहीं ये मनी बिल नहीं है, कि हाँ ये मनी बिल है. तो इशू ये था, राइट. तो पहले मैं ये दो पैराग्राफ पढ़ लीजिए, फिर मैं आई एक्सप्लेन व्हाट मनी बिल इज इन द आर्टिकल. उसके साथ मैं आई एक्सप्लेन व्हाट फाइनेंशियल बिल इज, एंड फाइनेंशियल बिल और मनी बिल कैसे अलग अलग होती है. सो मनी बिल, दो तरह के मनी मैटर्स में. ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है, गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें बेचती है, रेलवे वगैरह से, ठीक है, टिकट्स के मनी वगैरह और बहुत सारी चीजें, कोल पेट्रोल वगैरह गैस वगैरह बेच के ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम अस, राइट. और तो द थिंग इज कौन डिसाइड करेगा कि, और उसके गवर्नमेंट को उसके बाद वो जो पैसा आता है गवर्नमेंट को बहुत सारी जगह स्पेंड भी करना होता है फाइनेंशियल मैटर में, कि यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हम हेल्थ में हम इतना पैसा लगाएंगे, हम डिफेंस में इतना पैसा लगाएंगे, ये सब. तो बहुत सारी चीजों में बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन बनाता है जिसमें पैसों की जरूरत होती है, और बहुत सारी चीजें होती है जिसमें पैसों की जरूरत नहीं होती, ठीक है, राइट. तो ये चीज, अब मनी बिल वो होता है जहां पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो, जहां पे गवर्नमेंट का पैसा लगे. पर ये डिसाइड करना कि हाँ ये मनी बिल है, यहाँ पे अगर लोकसभा स्पीकर ने मना कर दिया कि ये मनी बिल नहीं है, तो वो मनी बिल नहीं माना जाएगा, तो उसके एक्सपेंडिचर से उसका कोई मतलब नहीं होगा. पर अगर स्पीकर ने हाँ बोला तभी तो. मनी बिल इन शॉर्ट क्या होता है, जहां पे भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो, जहां पे भी गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस, अगर इस साल के डिफेंस में अगर कुछ बहुत बड़ा कुछ खरीदना हो या फिर कुछ हो, तो वो चीज मनी बिल के अंदर आएगी. और कब आएगी, जब लोकसभा का स्पीकर बोले कि ये मनी बिल है तभी आएगी, वरना वो मनी बिल नहीं हो पाएगा, हो सकता. एंड देन 100 आर्टिकल 117 के अंदर आता है फाइनेंशियल बिल, राइट, ठीक है. एंड अब मनी बिल फाइनेंशियल बिल में डिफरेंस क्या होता है. मनी बिल इज अ स्पेशीज ऑफ फाइनेंशियल बिल, मतलब मनी बिल एक तरह का फाइनेंशियल बिल होता है, पर सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल नहीं होते. फाइनेंशियल बिल भी लोकसभा के पैसे उगरा का ही हैंडल करता है कि गवर्नमेंट कहाँ पे कैसे कैसे कुछ कहाँ पे क्या एक्सपेंडिचर करेगा. बट मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में ये डिफरेंस है, बहुत सारी चीजें हैं जो मनी बिल के अंडर आएंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो फाइनेंशियल बिल के अंडर आएंगी. बट मनी बिल में डिफरेंस है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा से ही निकाला जा सकता है, राज्यसभा से नहीं. और लोकसभा अगर कोई मनी बिल निकाले तो वो राज्यसभा उसको मना नहीं कर सकती, राज्यसभा उस पर डिस्कशन कर सकती है, वापस भेज सकती है. पर अगर लोकसभा उसको वापस भेजे उस मनी बिल को, तो आपको पता है ना, जब मनी बिल कोई भी बिल हो, जब वो लोकसभा से लोकसभा या राज्यसभा से एक बार, हाँ, अगर फॉर एग्जांपल मेजोरिटी लोग हाँ बोलते हैं, उसके बाद वो दूसरे हाउस में जाती है. अगर लोकसभा हो तो लोकसभा से राज्यसभा पे जाएगी, राज्यसभा हो तो राज्यसभा से लोकसभा पे जाएगी. और जब दोनों हाउस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा,
दोनों हाउस उस पे मेजोरिटी ऑफ लोग असेंट करते हैं, तब जाके वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट का उसको पे साइन होता है, तब एक बिल एक एक्ट बन जाता है। उससे पहले वो बिल रहता है और बिल की कभी कोई पावर नहीं होती। ठीक है, तो यही चीज, तो फाइनेंशियल बिल, ठीक है, बहुत सारा फाइनेंशियल बिल और मनी बिल। ठीक है, फाइनेंशियल बिल राज्यसभा में भी आ सकता है और लोकसभा में भी आ सकता है, पर लोकसभा पर जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। फाइनेंशियल बिल को राज्यसभा मना कर सकती है, मतलब डिसेंट का, फॉर एग्जांपल हाफ ऑफ द पीपल इन राज्यसभा जो लोग हैं उन्होंने मना कर दिया, तो फाइनेंशियल बिल आगे पास नहीं होगा, प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा। पर लोक मनी बिल के पास नहीं, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है कि वो मना कर दे। ठीक है, हाँ, बिल जाता है राज्यसभा के पास, पर राज्यसभा अगर एक बार मना कर दे, वो बिल वापस जाके लोकसभा के पास जाएगा। लोकसभा उसके बाद अगर वापस हाँ बोलेगी नहीं ये बिल करेक्ट है, और वापस राज्यसभा के पास जाएगा, उसके राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, राज्यसभा को उसके ऊपर साइन करना ही पड़ेगा, और राज्यसभा से मतलब मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने वो पास कर लिया है। उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, देन द बिल विल बी, प्रेसिडेंट साइन करने के बाद द बिल विल बी कन्वर्टेड एज अ एक्ट, राइट। तो दिस इज फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल। मनी बिल इज, ये याद रखना पड़ेगा, मनी बिल इज आर्टिकल 110, कौन सा सबसेक्शन है 1 3 वो याद रखने की जरूरत नहीं, बस 110। एंड फाइनेंशियल बिल इज आर्टिकल 117, राइट। ओके, जस्ट इसी यूआईडीआई की जो आधार है, आधार ऑफ कोर्स, जो आधार में को कंट्रोल कौन कर रहा है, मतलब जो मेन बॉडी क्या है, उसे यूएडीएआई कहते हैं। तो मैं दो तीन स्टेटिक क्वेश्चन से पूछ लेता हूँ, आई थिंक वो इसमें यहाँ पे नहीं है। यूआईडीएआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लाइक आप मेरे को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, और या फिर चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ यूआईडीएआई। Yes, नई दिल्ली नहीं। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्पीक, यू स्पीक अ लिटिल लाउडर। न्यू दिल्ली सर। हाँ हाँ, इट्स न्यू दिल्ली, राइट। थैंक यू। गौतम है ना? हाँ, गौतम, आंसर न्यू दिल्ली है। सेकंड क्वेश्चन, यूआईडीएआई, आधार से पहले यूआईडीएआई का फॉर्मेशन हुआ था। आई वांट टू नो द ईयर, कब आया था यूआईडीएआई? यूआईडीएआई का ईयर ऑफ फॉर्मेशन, नो, अभिप्सा, आई वांट टू नो द ईयर, नॉट डेट। Yes, it's 2009. Right, right, right. So, yes, Milind, it's 2009. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, राइट? तो सुप्रीम, इसके स्टेटिक क्वेश्चन, स्टेटिक एज वेल एज करंट भी मान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लास्ट ईयर, इट्स 2019 और 20 में, नंबर ऑफ जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं उन कि वो बढ़ा दिए गए थे कि कितने जजेस, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम जजेस सुप्रीम कोर्ट में कितने बैठ सकते हैं। तो कितने नंबर है, नंबर ऑफ जजेस प्लस द सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल मिला के मैक्सिमम कैपेसिटी किया है सुप्रीम कोर्ट की अभी?
33 सर। इंक्लूडिंग द सीजीआई और एक्सक्लूडिंग द सीजीआई, मतलब सीजीआई को ऐड करके और हटा के? नहीं, आई थिंक अनुराग इज क्लोज बट नॉट राइट. It's 34. It's excluding the CGI, Chief Justice of India. It's 33 judges plus the Chief Justice of India, CGI, 34. तो total number of judges are 34. ठीक है, याद रख लेना. और इनिशियली जब सुप्रीम कोर्ट फाउंड हुआ था, मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तुम्हें बताया तो आंसर. सुप्रीम कोर्ट वाज फाउंडेड, मतलब उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं कहते थे, वो प्रिवी काउंसिल थी. प्रीवी काउंसिल का फॉर्म हुई थी वो याद करना जरूरी नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापित हुई थी एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1950. और जब सुप्रीम कोर्ट का की स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस थे 8. तो अभी 34 है. तो अमेंडमेंट्स हुए पहले 1957 से 8 से और बड़े, उसके और बढ़े और बड़े और बड़े, अभी 34 है. तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा था कि सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या थी सुप्रीम कोर्ट बेंच की? दैट विल बी 8. दैट इज 7 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिसेंटिंग जजेस, वन ऑफ द 5 जजेस डिसेंटेड विद द मेजॉरिटी व्यू एंड सेड दैट 2019 जजमेंट. ये 5 जज थे. हर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में अगर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक क्वेश्चन हो जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, ये देखने के लिए कि क्या ये जो क्वेश्चन है, मतलब क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस आया है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में गलत है, या फिर कोई भी नया एक्ट आया है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है. कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन या फिर कोई भी ऐसा एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में आए, तो उसके लिए कम से कम मिनिमम 5 जजेस बैठते हैं. यस, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, मैं वही समझा रहा हूँ आयुष. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक वो होता है कि जहां पे भी अगर कोई भी ऐसा केस जाता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना होता है. फॉर एग्जांपल ऐसा एक एक्ट निकाला गया जो आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में आप एज ए लॉयर बड़े होके, ठीक है, मान लेते हैं आयुष आयुष बड़े होके ऐसा एक एक्ट निकाला गवर्नमेंट ने जो हमको लगता है कि तुम्हारे किसी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है, और आयुष जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या वो असली में तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स है, क्या वो गवर्नमेंट का जो नया एक्ट है वो उसके असली में उसके अगेंस्ट जा रहा है या फिर नहीं जा रहा. तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई जाती है. मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बैठेगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मतलब कितने नंबर ऑफ जजेस की? 5 मिनिमम. एक कॉन्स्टिट्यूशन के केस ज्यादा हो सकते हैं पर कम नहीं हो सकते. अगर ऐसा कुछ भी डिसाइड, अगर आयुष जाएगा और बोलेगा कि ये डिसाइड करो कि जाता है ये मेरे राइट्स के अगेंस्ट कि नहीं जाता, तो मिनिमम नंबर ऑफ 5 जजेस बैठेंगे. ये 5 जज याद रखना जरूरी है कि कितने नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए, मिनिमम 5 जजेस बैठेंगे, तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. और वो डिसाइड करेंगे उसके बाद कि क्या ये तुम्हारे राइट्स के अगेंस्ट जाता है या फिर नहीं जाता. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आज तक सबसे बड़ी बेंच अगर कभी बैठाई गई है, वो बिठाई गई है. मुझे लगता है अगर तुमने इस केस का नाम सुना होगा, केशवानंदा भारती के केस पे. केशवानंदा भारती के केस में 13 जजेस बैठे हुए थे. तो 13 जजेस की बेंच थी, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था. अगर 5 बेंच से मिनिमम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जजेस बैठेंगे, उसके बाद कितने ही बैठ सकते हैं? आज तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सबसे ज्यादा अगर जजेस कोई बैठे हैं वो केशवानंदा भारती के बैठे हैं, 13 जजेस, राइट. वन ऑफ द, ये जो 5 जजेस थे, जिन्होंने 5 में से 4 जजेस ने एक ही ओपिनियन दिया, पर एक जिन्होंने डिसेंट दिया, जिन्होंने एक ही ओपिनियन दिया, एक ही ऑर्डर दिया, उनका नाम याद रखना नहीं है. जो डिसेंटिंग जजमेंट थे उनका नाम है वाईवी चंद्रचूड़. तो उनका चंद्रचूड़ का नाम याद रख लेना कि डिसेंटिंग जजमेंट किसने दिया था? चंद्रचूड़ ने दिया था, राइट. फाइनल जजमेंट ये था कि
सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला कि जो आधार एक्ट है उस वो वैलिड है, किसी भी तुम्हारे राइट्स के अगेंस्ट नहीं जाता है। ठीक है, बिकॉज 5 में से मेजोरिटी 4 जजेस ने बोला, ठीक है, कि आधार एक्ट वैलिड है, वो तुम्हारे राइट्स के अगेंस्ट नहीं जाता है, और एक ने बोला कि नहीं, वापस देखना चाहिए। ऑफ कोर्स हर जगह जहाँ पे जो मेजोरिटी है उनकी चलती है, तो मेजोरिटी की बात मानी गई। राइट। तो मनी बिल जो मैंने तुम्हें समझाया भी था, ये मनी बिल एक्सप्लेन भी करा हुआ है, मैंने देखा नहीं था, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ मनी बिल। एक बार पढ़ लो। ओके, उससे पहले आयुष, व्हाट इज आधार एक्ट? आयुष, आधार कार्ड है कि सभी के बने होंगे अभी तक, मेरा भी है, आप सबका भी ऑलमोस्ट होगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं उसमें भी। बट आधार कार्ड है, तो थिंग इज गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऐसा कोई भी कार्ड, ये भी आपका पान कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो, ठीक है, पर क्या गवर्नमेंट ऐसे ही एक दिन आपको उठ के बोल सकती है कि जाओ आधार कार्ड बनाओ, और आधार कार्ड के अंदर बिना कुछ आपको ये समझाए कि आधार कार्ड बनाने से फायदा क्या होगा, क्यों बनाना चाहिए, हम क्या करेंगे आधार उसका? तो सेम चीज, अगर आपको लगता है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस में आपको क्या बेनिफिट होगा, आपके पास क्या क्या रूल्स, कि आपको गाड़ी तेज नहीं चलानी है, अगर आपको ठोक दोगे तो आपको ये पनिशमेंट होगा, इसके लिए भी एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी एक एक्ट बनाया गया है, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1986 और 88। ठीक है, तो वैसी आधार एक्ट, ठीक है, जब आधार निकाला गया था, जिसके लिए आपका आधार कार्ड है, आपने बनवाया, मैंने बनवाया, ठीक है, उसके रूल्स, ठीक है, क्यों बनवाना है, किस लिए बनाना है, क्या है उसके सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस, क्या है आधार का, तो वो सब लिखा हुआ है एक आधार एक्ट में। तो वो आधार एक्ट 2016, याद रख लेना, 2016 में आया था आधार एक्ट। तो वो सब चीज उसमें लिखा हुआ है, तो वो है आधार एक्ट। ठीक है। इसमें अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है। तो अगर किसी को पता नहीं है, मेरे को एक बार पूछ लेना, मैं बता दूंगा अटॉर्नी जनरल कौन होता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर तुम सबको पता है कि अटॉर्नी जनरल कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऑफ कोर्स अगर बात की गई है तो किसी एक आर्टिकल में ही की गई होगी, तो वो आर्टिकल कौन सा है जिसमें अटॉर्नी जनरल की बात की गई 76। है? ये 76, 76, मेरे को पता नहीं किसने आंसर बोला, बट जिसने बोला सही है। ठीक है, तो हाँ, आंसर है 76, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल की बात की गई है। अगर ओके, अटॉर्नी जनरल, आयुष, अटॉर्नी जनरल, इसको अगर मैं पूरे लेमैन टर्म्स में समझाऊं, अटॉर्नी जनरल क्या होता है? जब एक गवर्नमेंट बनती है, तो मान लो कि अगर पूरे इंडिया में किस एक ऐसी एंटिटी, किसके या फिर किसी एक ऐसे इंसान या फिर एंटिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा केसेस किसके अगेंस्ट होंगे दुनिया में, मतलब इंडिया में, कि ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट के ऊपर लोग हर दिन लाखों केसेस, कभी किसी की पेंशन का केस, कभी किसी का कुछ केस, कभी पुलिस ने किसी गवर्नमेंट के ऊपर केस, कभी आपको कुछ, मतलब फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज में कुछ दिक्कत हुई गवर्नमेंट से, आप गवर्नमेंट के ऊपर केस, तो इतने सारे केसेस होते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर किए जाते हैं, और सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ही नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट भी तुम्हारे ऊपर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई किसी का मर्डर कर देता है, ठीक है, कोई किसी का पर्स चुरा लेता है, कुछ हो जाता है, उसके बाद पुलिस उसको पकड़ती है, तो पुलिस उसके ऊपर केस नहीं करेगी, राइट? ठीक है, गवर्नमेंट उसके ऊपर केस करेगी, द स्टेट गवर्नमेंट जिसे कहते हैं द स्टेट, ठीक है, स्टेट उसके ऊपर केस करेगी, राइट? ठीक है। अब द थिंग इज, कभी कभी बहुत बड़े बड़े मैटर होते हैं, जैसे कौन, मैंने वही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर हो रहा, ठीक है, तो उसके लिए, और इसलिए गवर्नमेंट के पास भी एक आर्मी ऑफ लॉयर्स है, ठीक है, बहुत सारे लॉयर्स है गवर्नमेंट के लिए, जो इन सारे केसेस को
देखती है कि कि मतलब अगर तुम किसी के ऊपर केस लड़ोगे या फिर करोगे, स्टेट के ऊपर केस करोगे या फिर स्टेट तुम्हारे ऊपर केस करेगा, तो ये सब लड़ेंगे। तो उसमें एक सबसे बड़ा अगर कोई होता है वो है अटॉर्नी जनरल, उन्हें कहते हैं, जिसे गवर्नमेंट हायर करती है। अटॉर्नी जनरल एक लॉयर होता है, ठीक है, और वो छोटा मोटा लॉयर नहीं होता। वो मान लो वो ये कह सकते हैं कि वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट लॉयर होता है, जिसे गवर्नमेंट हायर करती है। और गवर्नमेंट उसको ऐसा नहीं कि हर केसेस में अटॉर्नी जनरल को भिजवाएंगी, वो जो बहुत बड़े बड़े केसेस है जो गवर्नमेंट सोचती है कि उसके ऊपर बहुत, या तो अगर वो हार जाएगी तो बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट उसमें अटॉर्नी जनरल को भेजती है। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल क्या है? अटॉर्नी जनरल एक लॉयर है जो गवर्नमेंट हायर करती है, ठीक है, और वो बहुत अच्छा लॉयर होता है। और जो भी बड़े बड़े केस होते हैं गवर्नमेंट अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के अटॉर्नी जनरल को भेजती है, मतलब गवर्नमेंट का वकील बन के जाएगा अटॉर्नी जनरल, और वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल, राइट, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें पहले एडवोकेट जनरल समझा देता हूँ। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद विल गो टू सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, तो मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल हायर करती है, ठीक है। पर ये तो हो गई गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट की बात। जैसे अभी बीजेपी है, ठीक है, वो उनका प्राइम मिनिस्टर है, उनका रेलवे मिनिस्टर है। बट देन अगर आप किसी स्टेट से हो, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है, आप में से कोई किसी स्टेट से होगा, कोई किसी स्टेट से होगा, पर आपके अपने अपने स्टेट में भी एक एक गवर्नमेंट होगी, राइट, जिसे कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मेरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी अभी मेरे स्टेट में वो स्टेट गवर्नमेंट उनका आम आदमी पार्टी का है। अब सिर्फ केसेस कंट्री के ऊपर, मतलब सिर्फ जो मेन हेड सेंटर, जो सेंटर के ऊपर ही नहीं होते, स्टेट के ऊपर भी हो सकते हैं। मतलब बहुत लोग आम आदमी पार्टी, बस जैसे मैं दिल्ली में हूँ, अगर दिल्ली में मेरे कुछ राइट्स वगैरह कुछ इन्फ्रिंज किए, तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट को भी सू कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें दिल्ली गवर्नमेंट को, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर मैं दिल्ली गवर्नमेंट को सू करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सू करूंगा। अगर मैं दिल्ली गवर्नमेंट को सू करता हूं तो ऑफकोर्स दिल्ली गवर्नमेंट को भी, ऐसा नहीं कि दिल्ली गवर्नमेंट को पूरे साल में दो या फिर चार लोग सू करते हैं, लाखों लोग दिल्ली गवर्नमेंट को भी सू करते हैं, ठीक है। या फिर लाखों लोग बिहार गवर्नमेंट को भी सू करेंगे, लाखों लोग पंजाब गवर्नमेंट को भी सू करेंगे। तो ऑफकोर्स उन स्टेट को भी लॉयर्स चाहिए, राइट। जैसे एज सेंटर में, सेंटर ने भी अटॉर्नी जनरल रखा था, तो वैसे ही दिल्ली स्टेट, दिल्ली यूनियन टेरिटरी बोलो या फिर दिल्ली स्टेट बोलो, ठीक है, या फिर पंजाब, कन्वीनियंस के लिए पंजाब स्टेट, तो पंजाब स्टेट को भी इतने सारे केसेस लड़ने के लिए लॉयर्स चाहिए, तो पंजाब एज ए स्टेट भी बहुत सारे लॉयर्स हायर करेगा, ठीक है। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉयर होगा उसे कहेंगे एडवोकेट जनरल। सेंटर का हो गया अटॉर्नी जनरल, स्टेट का हो गया एडवोकेट जनरल। उसमें स्टेट जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस स्टेट को लगेगा कि ये हम हार गए तो हम पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, उसमें स्टेट अपना एडवोकेट जनरल भेजेगा, ठीक है। और वो भी एक लॉयर ही होता है जो स्टेट को, एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे पंजाब गवर्नमेंट का एक अलग स्टेट वो होगा, एडवोकेट जनरल होगा, दिल्ली गवर्नमेंट का एक अलग एडवोकेट जनरल होगा। पर ये भी बहुत बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं जो कि उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दिल्ली स्टेट, पंजाब स्टेट, जम्मू कश्मीर स्टेट, इन सबको, ठीक है। ये हो गई बात अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की। अब बात हो जाएगी अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल? अगर आपने चेस खेला होगा कभी, ठीक है, या फिर थोड़ा सा भी सुना होगा, या फिर क्रिकेट मान लेते हैं, आई गेस इंडिया में सबको क्रिकेट पता होगा, ठीक है। क्रिकेट में एक होता है कैप्टन, एक 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, पर एक होता है कैप्टन और एक होता है वाइस कैप्टन, ठीक है। कैप्टन हेड होता है, पर ये नहीं है कि सारे के सारे डिसीजंस कैप्टन ही बनाएगा, ठीक है। यस, एट द अल्टीमेट, एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ी पावर कैप्टन के पास होती है। कैप्टन ने कुछ बोल दिया तो वही माना जाएगा, बाकी 10 प्लेयर की नहीं सुनी जाएगी तब, ठीक है। क्रिकेट में यही होता है, अगर बता देना अगर मुझे गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पर द थिंग इज एक वाइस कैप्टन भी होता है। सॉलिसिटर जनरल मान लो गवर्नमेंट का वाइस कैप्टन है, लॉ के रिलेटेड अगर केस है पूरा में, ठीक है। अब इतने सारे, मैंने आपको बोला ना, लाखों केसेस होते हैं, लाखों केसेस। और लाखों केसेस में मान लो अगर 1500 भी इंपॉर्टेंट केसेस हुए, तो उस सब 500 के 500 केसेस में एडवोकेट जनरल को नहीं भेजा जा सकता, ठीक है, बिकॉज एडवोकेट जनरल के पास भी 24 आवर्स ही होते हैं दिन में, उसके इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल जहां जहां नहीं जा पाता तो वहां पे सॉलिसिटर जनरल जाते हैं, और सॉलिसिटर जनरल मान लो वाइस कैप्टन होता है, कैप्टन हो गया अटॉर्नी जनरल, वाइस कैप्टन हो गया एडवोकेट जनरल, नहीं सॉरी, सॉलिसिटर जनरल। और
द थिंग इज डिफरेंस ये होता है कि कैप्टन हमेशा एक ही होगा, ठीक है, दैट इज अटॉर्नी जनरल, पर वाइस कैप्टन एक नहीं होंगे, ठीक है। 3 4 5 गवर्नमेंट की मर्जी, वो कितने भी सॉलिसिटर जनरल रख सकता है, तो वो मतलब वाइस कैप्टन कितने भी रख सकता है, पर अटॉर्नी जनरल तो बस एक ही होगा, कैप्टन एक ही होगा टीम में, पर वाइस कैप्टन कितने भी हो सकते हैं। जहां जहां कैप्टन नहीं जा सकता, ठीक है, उसके पास टाइम नहीं है मान लो, या फिर एक दिन में 2 केस साइमल्टेनियसली, एक पंजाब हाई कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट में है, बट अटॉर्नी जनरल को पंजाब हाई कोर्ट वाला केस लड़ना है, ठीक है, और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता, तो कौन जाएगा, केस तो हो गई, तो वहां पे दूसरे कोई वाइस कैप्टन जाएंगे, ठीक है, जो कि सॉलिसिटर जनरल होंगे। माई वॉइस इज ब्रेकिंग, आयुष अब ठीक है? आई डोंट नो व्हाई माय वॉइस इज ब्रेकिंग। Yes, sir. Clear now. सबको सुनाई नहीं दे रहा या फिर लाइक आयुष को सुनाई नहीं दे रहा? एक बार चैट बॉक्स में बता दो। ओके राइट, ठीक है, तो आई थिंक जब तक मैंने बोला था, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। एक जो कैप्टन होगा वो अटॉर्नी जनरल है, वो मेन मेन जगह पे जाएगा जहां जहां पे अटॉर्नी जनरल नहीं जा सकते, ठीक है, वहां पे वाइस कैप्टन जाएंगे, दैट इज सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल एक नहीं होंगे, 4 5 होगा, गवर्नमेंट जितनों को अपॉइंट कर सकती है वो उसको सॉलिसिटर जनरल कर सकती है, और वहां पे वो सॉलिसिटर जनरल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, स्टेट के लिए हो गया एडवोकेट जनरल, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल कौन है अभी इंडिया का? नेम ऑफ द अटॉर्नी जनरल, मैंने बोला था ना कैप्टन एक ही है, ठीक है, और वो मैं सॉलिसिटर जनरल नहीं पूछूंगा बिकॉज 3 4 है, ठीक है, पर कौन है कैप्टन, कौन है अभी इंडिया का, मतलब लॉ के फील्ड में? यस, के वेणुगोपाल, राइट, यस, के वेणुगोपाल। तो नीचे जाते हैं, आई गेस हमने ये पढ़ लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये एम नागराज केस जो है, ये लैंडमार्क केस था। लैंडमार्क केस वो होते हैं जो इंडिया के हिस्ट्री के वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है, उस उन केसेस से कुछ ना कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई होती है, ठीक है, तो एम नागराज केस उनमें से एक है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था वो आई गेस नीचे लिखा है, नीचे नहीं लिखा होगा तो हाँ ये लिखा हुआ, द केस इन द कोर्ट इन एम नागराज केस हैज अपील्ड द एप्लीकेशन ऑफ द क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या होता है वो नीचे आपको मिल जाएगा एक बार, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आया मुझे को एक बार बता देना, आई एक्सप्लेन इट, ठीक है। नीचे चलता हूँ, ये क्रीमी लेयर है। आयुष मुझे समझ नहीं आया लैंडमार्क से इन केस मतलब, डू यू वांट मी टू लाइक गिव एग्जांपल्स ऑफ लैंडमार्क केसेस, और मैं एग्जांपल दूं या फिर और कुछ, मतलब मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, अगर आप रिफ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चन को। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सबको क्रीमी लेयर क्या है पढ़ के समझ आ गया होगा। किसी को अगर ये समझ नहीं आ रहा है, फिर किसी को इन जनरल भी समझ नहीं आ रहा है, क्यों नॉट, कि इंग्लिश में ये पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सब ये पढ़ के समझ पा रहे हैं, किसी को भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो मेरे को बता देना, मैं पूरा पढ़ के मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा स्टार्टिंग से, ठीक है। तो मैं इतना जिम कर रहा हूँ कि सबको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में एक बार बोल दो, मैं पूरा पढ़ के पूरा अच्छे से फिर से स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर लूंगा, मतलब यहाँ से एक्सप्लेन कर लूंगा, राइट। यूज लैंडमार्क्स एंड केस, मतलब केस जो गिवन है क्रीमी लेयर में। चलो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई गेस शायद से फिर 2006 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी गई थी, उस केस का नाम था एम नागराज वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ यूनियन ऑफ इंडिया ही होगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और स्टेट कंट्री मतलब यूनियन के अगेंस्ट हुआ था, तो एम नागराज के इसलिए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नहीं, जैसे केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था, वो एक लैंडमार्क केस है, पर उसको कहते हैं सिर्फ केशव नंदा भारती केस, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट के अगेंस्ट है उसका नाम छोड़ देते हैं, तो ये केस है एम नागराज केस, ठीक है। उसका
क्वेश्चन ये था कि द कोर्ट इन एम नागराज केस हैज अपेल्ड द एप्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर प्रिंसिपल टू मेंबर्स। उसमें ये था कि आपको ये पता होगा कि बहुत सारे मतलब हर जगह फॉर एग्जांपल, अगर आपको एनयूजे सूरा में भी, मतलब मैं एनयूजेएस में हूँ, मेरे कॉलेज में भी रिजर्वेशन है एससी एसटी के लिए। ओबीसी के लिए रिजर्व, सिर्फ स्टेट ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है, पर एससी एसटी के लिए भी रिजर्वेशन है। तो ऐसे हर चीज में रिजर्वेशन होती है, आईएएस आईपीएस पूरा में भी ऐसे रिजर्वेशन है। ठीक है, शायद से नहीं, रिजर्वेशन है। ठीक है, जैसे हर जगह रिजर्वेशन होती है विद द एक्सेप्शन ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, आर्मी में रिजर्वेशन को छोड़कर हर जगह रिजर्वेशन होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये केसेस था कि प्रमोशन में फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं मान लो मैं पुलिस ऑफिसर बन गया। ठीक है, और मैं एससी हूँ या फिर एसटी में हूँ, तो मैं पुलिस ऑफिसर बन गया। तो ऑफ कोर्स थोड़े टाइम के बाद मेरे को प्रमोशन भी चाहिए होगा। ठीक है, अगर मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ, मैं बहुत लोगों को, बहुत अपराधियों को पकड़ रहा हूँ, ये सब मेरे को प्रमोशन चाहिए होगा, राइट। ठीक है, तो ये केस ये था कि जब मैं मुझको जॉब मिल गई बिकॉज मैं रिजर्वेशन से आया था। ठीक है, क्या मेरे को प्रमोशन भी मिलना चाहिए कि ऐसा वर्क, फॉर एग्जांपल अगर 1,000 लोगों को, आउट ऑफ 1 लाख पुलिस ऑफिसर में 1,000 लोगों को प्रमोशन होना है, तो उन 1,000 लोगों में से भी क्या एक रिजर्वेशन होनी चाहिए कि कम से कम 50 लोग जो जिनका प्रमोशन होगा, वो 50 लोग एससी या फिर एसटी में से ही होंगे, या फिर नहीं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की बस वो है कि नहीं वो 1,000 लोग उनका कोई वो नहीं है। ठीक है, कि वो एससी एसटी से ही होंगे कि कहीं जनरल से भी हो सकते हैं। तो और उसमें भी ये था कि अगर वो 1,000 में से भी 50 लोग एससी एसटी से भी रिजर्वेशन हो जाए प्रमोशन के लिए। ठीक है, उसमें भी एक क्रीमी लेयर होगा या फिर नहीं। क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर 1992 में एक लैंडमार्क केस था, फिर से इंदिरा सानी केस। ठीक है, उसको इंदिरा सानी केस फेमसली बुलाया जाता है। उसमें क्रीमी लेयर कर दिया गया था कि वो ओबीसी में अप्लाई होता है मोस्ट वाली नहीं, मोस्टली ये अब क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर इज कि अगर मैं ओबीसी भी हूं, मालूम, और मैं ओबीसी हूं, ठीक है, मैं ओबीसी हूं, पर मेरे डैड की इनकम, मेरी फैमिली इनकम एक पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट सेट करती है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब एक पर्टिकुलर, मतलब मान लो अभी मैं बता देता हूँ, अभी क्रीमी लेयर 8 लाख है। अगर मेरी फैमिली की इनकम, मेरे मम्मी पापा सब मिला के 8 लाख से ज्यादा कमाते हैं, तो मैं क्रीमी लेयर के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, तो भले मैं ओबीसी हूं, अगर कोई भी रिजर्वेशन ओबीसी की होगी कहीं पे भी, मैं उसके लिए क्वालिफाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं, मान लो, क्योंकि मैं ओबीसी हूँ। ठीक है, राइट। तो क्रीमी लेयर ये होता है, एक लेयर है 8 लाख की। अगर तुम रिजर्वेशन में अगर तुम्हारा कास्ट अगर रिजर्वेशन में भी आता है, पर तुम उससे ज्यादा पैसे कमाते हो, मतलब क्रीमी लेयर से, तो तुम भी तभी भी तुम्हें उस चीज के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये केस था बीपीएल, अनुराग बोल रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बट अनुराग, बीपीएल और क्रीमी लेयर दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो एक सेकंड, राइट। हाँ, हाँ, तो नागराज केस में हुआ क्या था? नागराज केस में यही कि रिजर्वेशन होनी चाहिए प्रमोशन में भी, रादर देन सिर्फ कि जॉब में, मतलब जॉब में अगर 1,000 जॉब है तो उसमें से 200 से एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन होगी। वो चीज तो थी ही पहले, पर ये क्वेश्चन ये था कि उसके बाद जब जॉब मिल गई, उसके बाद भी जब प्रमोशन होगा उसमें रिजर्वेशन होगी या फिर नहीं। अगर रिजर्वेशन होगी भी एससी एसटी में, तो उसमें भी क्रीमी लेयर का एप्लीकेशन होगा या फिर नहीं। मतलब अगर एस सी एस टी में, अगर फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस ऑफिसर है और उसकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो क्या उसको प्रमोशन मिलेगा बेस्ड ऑन रिजर्वेशन और फिर नहीं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिसाइड करने के लिए कोर्ट 2006 में नागराज की केस में, एम नागराज के केस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी और उसमें ये केस डिसाइड हुआ था, राइट। ये डिसाइड हुआ था 2006 में नागराज केस से। अगर किसी को समझ नहीं आया ये क्या हुआ था, तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा।
ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, पर पढ़ लो, याद रखने की जरूरत। जब भी रिजर्वेशन की बात होती है 1992 के, जो मैंने अभी बताया था कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि रिजर्वेशन कभी भी 50% ऑफ द टोटल सीट्स में से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो कि पुलिस की जॉब है और 1000 पुलिस ऑफिसर्स को एक स्टेट में उनको लाना है, तो रिजर्वेशन कभी भी 77 81 क्या है अभी, मैं जाता हूँ पर एक सेकंड। तो रिजर्वेशन अगर 1000 पुलिस ऑफिसर्स को लाना है, रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब सारे रिजर्वेशन मिला के, बीट बी डिसेबिलिटी, SC ST OBC, ठीक है, सारे रिजर्वेशन कभी भी, टोटल जितने भी रिजर्वेशन है 500, अगर 100 पुलिस ऑफिसर्स है 501 नहीं हो सकता। रिजर्वेशन से 500 लोगों को मिल सकती है, बाकी 500 तुम्हें जनरल से ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 50% लिमिट थी। यस, एक सेकंड, वो 77 81 अमेंडमेंट, ओके। मैंने तुम्हें बताया था ना कि कैसे बिल निकलते हैं पहले, और वो बिल, अगर फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन बिल है, आर्टिकल 14 होता है राइट, राइट टू इक्वालिटी, राइट, ठीक है। वैसे आर्टिकल 19 हो गया तुम्हारा, आर्टिकल 17 हो गया कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो अभी लेके चलते हैं आर्टिकल 14, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे को आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को हटा देना है, कि आज से मैं गवर्नमेंट हूँ और मैं बोलूंगा कोई इक्वालिटी है ही नहीं, कोई इक्वालिटी नहीं है, सब ऐसे अनइक्वल रहेंगे, ठीक है, ऐसी चलेगी, हम ऐसे ही चलेगा हमारा देश, ठीक है। तो और मैं गवर्नमेंट हूँ, क्या सिर्फ मेरे बोलने से ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है, राइट। तो मैं पहले एक बिल निकालूंगा, मतलब बिल निकालूंगा, उसमें हर चीज लिखा होगा कि आर्टिकल 14 क्या होती है। आर्टिकल 14 इस डेट से नहीं होगा, हटाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देंगे, ये सब ये सब। अब वो जाएगा लोकसभा में, अगर मैं मान लो मैं लोकसभा का मेंबर हूँ, वो लोकसभा में वो बिल लेके आऊंगा, मैं लोकसभा में जाऊंगा, वो 50% से, अगर अगर लोकसभा में जितने भी लोग हैं वो 50% से ज्यादा, ठीक है, असली में वो 2/3 होता है, ठीक है, मतलब अगर 100% है तो 66% से मान लो। पर अगर मैं अभी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कर लेता हूँ 50%, अगर 50% से ज्यादा लोगों ने बोल दिया हाँ हाँ इक्वलिटी तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है, निकालो इसको, कॉन्स्टिट्यूशन से निकालो, आर्टिकल 14 ही निकाल दो, तो आर्टिकल, उसके बाद वो बिल पास हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी अगर लोगों ने, मतलब मेजोरिटी ऑफ लोगों ने बोला हाँ हाँ आर्टिकल 14 कोई इक्वालिटी नहीं होगी, सब समाज में सब ऐसे अलग अलग होंगे, सारे इंसान अलग अलग, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा, ऐसे ही रहेंगे, अमीर लोग अमीर रहेंगे, गरीब लोग गरीब रहेंगे, ऐसे ही होगा बस, ठीक है, कोई इक्वालिटी नहीं होगी, ठीक है। तो राज्यसभा भी अगर बोल देता है हाँ, ठीक है, तो उसके, अभी तक ये बिल था, ठीक है, इसका कोई, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, बिल था।
उसके बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, ठीक है, उस बिल को, मतलब वो बिल बिल पूरा एक पेपर में पूरा एक डॉक्यूमेंट बन के आएगा, प्रेसिडेंट उसमें साइन करेगा। जैसे वो साइन कर जाता है ना, वो एक एक्ट बन जाएगा, ठीक है। वो उसके बाद वो एक उसके बाद क्या होगा, मैंने बताया ना कि आर्टिकल 14 हटा देंगे। आर्टिकल 14, जो तुम कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे, जब उसके बाद तुम देखोगे कि आर्टिकल 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, 14 नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि 14 हटा दिया गया है, ठीक है, मैंने हटा दिया, ठीक है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट था। और वो बन जाएगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब चेंज, एक किताब में एक चेंज आया है, अमेंडमेंट मतलब क्या डिफरेंट हो गया है, तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जब बात कर जाती है कि ऐसी गवर्नमेंट ने कभी ना कभी चेंज कराया होगा, वो पहली बार जब चेंज करा था 1950 या 51 में, वो था फर्स्ट अमेंडमेंट। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो जितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन में एक लेटर, एक कॉमा भी चेंज कर देंगे ना, एक कॉमा भी, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। लॉ स्कूल्स में आप में से आई होप सब आएंगे, आपको पता चलेगा कि लॉ स्कूल में कैसे एक एक्ट में एक कॉमा भी मीनिंग चेंज कर देता है, पूरा का पूरा एक्ट अड़बड़ खड़बड़ ऊपर नीचे कर देता है। तो कॉमा की भी कितनी वैल्यू होती है, सोचो, एक वर्ड नहीं, एक कॉमा कितनी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर एक कॉमा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा तो एक अमेंडमेंट बन जाएगा। तो एक जैसे ही पहला एक अमेंडमेंट बनेगा, 1 2 3 4 ये सब, तो वैसे ही नंबर में 77th अमेंडमेंट, 81st अमेंडमेंट, 86 एंड 85th अमेंडमेंट्स में ये सब चेंजेस की गई थी, ठीक है। अब अनुराग, एक्सेसिवनेस ब्रीचिंग द सीलिंग लिमिट, यस। मैंने अभी बताया था ना कि अगर एक सीलिंग है, सीलिंग मतलब है कि मैक्सिमम मैक्सिमम 50%। 1992 में जब केस हुआ था, इंद्रसानी केस, तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुआ था कि रिजर्वेशन कभी 50% से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो सीलिंग क्या होगी, 50%। तो अगर 1,000 लोग हैं, ठीक है, अगर 1,000 लोगों को जॉब देनी है, या फिर मान लो एनयूजीएस है, ठीक है, मतलब मेरा कॉलेज है, मेरे कॉलेज में 150 सीट्स हैं, ठीक है, मान लो 150 नहीं है, पर अगर मान लो 150 सीट्स है, एग्जाम्पल, ठीक है, तो 150 में से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कभी भी 150 का आधा, ठीक है, उससे ज्यादा सीट्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो 150 का आधा मतलब रिजर्व नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब 75, 150 का आधा 75, मैथ्स में थोड़ा कच्चा हूं, बट फिर भी आई गेस 75 है, ठीक है। हाँ 75, तो 70, तो सीलिंग अगर हो गई 50%, तो 150 सीट्स, 50% क्या हुई, 75। तो रिजर्वेशन कभी भी 75 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गई एक्सेसिव ब्रीचिंग ऑफ सीलिंग लिमिट, ठीक है, इससे ऊपर नहीं होगी, राइट। आज के लिए लास्ट न्यूज करते हैं, एनीवे। सर, हाँ हाँ बोलो। अमेंडमेंट चेंज कब फर्स्ट कब हुआ था बोले थे? मेरे को भी एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, बट जितना मेरे को लगा था इट्स 1950 और 51। मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, ओके ओके ठीक है। ओके। ये अदर रिलेटेड जजमेंट्स, ये आपको लॉ स्कूल में आके पढ़ना होगा, ठीक है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी समझाने के लिए, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है, इसलिए दिया गया है। आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बहुत इन डेप्थ है, ये याद मत रखना, राइट। आपको बस पढ़ने के लिए, जिसको अच्छा लग रहा है पढ़ लो, जिसको नहीं पढ़ना वो मत भी पढ़ो, पर बस पढ़ने के लिए दिया गया है। ये सब भी करंट डिमांड बाय द सेंटर, रिडंडेंसी ऑफ प्रूविंग बैकवर्डनेस अगेन, ये सब बस समझाने के लिए है। ये इनसे कुछ याद नहीं करना आपको कि क्या हुआ था एग्जैक्टली होता है ना, कि अगर स्टोरी होती है तो याद करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। अगर मैं बीच में बोल दूं कि ये याद कर दो, ये याद कर दो, याद कर दो, वो या चीज नहीं होगी। तो बस ये स्टोरी है, ये करंट डिमांड लेके रिडंडेंसी ऑफ प्रूविंग बैकवर्डनेस अगेन, ये सब याद नहीं करना है।
ये सब भी याद नहीं करना, बस ये पढ़ लो एक बार कि आर्टिकल 16(4) ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर प्रमोशन एंड रिजर्वेशन, ये है। ये भी बस ये सबसेक्शन याद मत करना, 4 4 ए 4 बी, बस ये की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, गवर्नमेंट, एक सेकंड बिल, इट इज आर्टिकल और एक्ट और बिल और अमेंडमेंट और, ओके मैं ये मैं सोचा है बाद में समझाऊं दिल्ली, क्योंकि ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, बट मैं इसको थोड़ा सा भी बता दूंगा अभी, ठीक है, जैसे ये क्लास अभी की वाली इसके बाद, ठीक है। आर्टिकल 16 याद कर लेना, सबसेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, कि रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 16, ठीक है। ओके, गौतम सर 1951 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था फर्स्ट, तो आई सेड 1950 और 1951, हाँ तो 1951 हुआ। यहाँ तक चलते हैं, ठीक है। ओके, फिर आई डोंट नो आपका नाम क्या है, DIG माल्डा, ठीक है, राइट, बट आई जस्ट एक्सप्लेन, ठीक है, कि डिफरेंस क्या होता है एक आर्टिकल में, एक्ट में, अच्छा वेब, राइट, ठीक है, आर्टिकल एक्ट बिल अमेंडमेंट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बिल बता दिया है कि बिल वो होता है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम सबने बना लिया, अगर नहीं भी कुछ छूट रही हो, जैसी नेक्स्ट वीक तुम्हें ये सब मिल जाएगा, राइट। हाँ, तो वेब, ठीक है, एक बिल, ठीक है, बिल क्या होता है पहले, ठीक है, तो कोई भी चीज पहले जो पार्लियामेंट में आती है उसे बिल कहा जाता है, ठीक है, किसी भी चीज में, ठीक है, चाहे वो मतलब जब तक उसको लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, पास ना करे, सुप्रीम कोर्ट इस पे साइन, सुप्रीम कोर्ट सॉरी प्रेसिडेंट जिसको साइन ना करे, एक बिल ही रहता है, बिल की कोई पावर नहीं होती, ठीक है। बिल, मान लो बिल एक तुम्हारे घर के पेपर की तरह है, उसमें कोई पेपर में तुम कुछ अपना नाम लिख दोगे, उसमें उस पर कोई वैल्यू नहीं है, उसमें से चर्चा कर जा सकते हो, अगर तुम कुछ बोल दोगे अपने पेपर में, उसका तुम अपने क्लास में किया उसके बारे में चर्चा कर सकते हो, पर उसकी कोई एज सच वैल्यू नहीं है, कंट्री पे वैल्यू नहीं होगी, राइट। तो जब तक दोनों हाउसेस एक बिल को, ठीक है, साइन ना करे, ठीक है, मतलब पास ना करे, देन प्रेसिडेंट साइन ना करे, वो सिर्फ बिल रहता है, उसकी पावर नहीं होगी। उसके बाद अब तुम बोलो कि अब बिल मेक, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये बिल समझ गया, ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ आर्टिकल क्या होता है, ठीक है। आर्टिकल, अब पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ आर्टिकल और सेक्शन क्या होता है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहली बार आया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे। आर्टिकल 1 में कुछ लिखा है कि आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत दैट इज इंडिया, ठीक है, ये सब, ठीक है। आर्टिकल 2 में उसके बाद कुछ है, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, ये सब आर्टिकल 385 कुछ याद नहीं करने सारे आर्टिकल्स, मेन मेन फंडामेंटल राइट्स क्या है तुम्हारे, वो आर्टिकल्स याद करने होंगे तुम्हें, ठीक है। तो आर्टिकल्स वो सारे होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, जितने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स आ गए, राइट, 385, उसके बाद कभी कोई आर्टिकल बन नहीं सकता, गवर्नमेंट के पावर नहीं है नए आर्टिकल्स बनाने की, ठीक है। गवर्नमेंट के पास है कि आर्टिकल्स को अमेंड कर सकती है, ठीक है, कि आर्टिकल, मान लो आर्टिकल 76 है, राइट, अटॉर्नी जनरल मैंने बताया था अभी, ठीक है, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल है, उसमें गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि एक अटॉर्नी जनरल हमें कम पड़ रहा है, एक कैप्टन कम पड़ रहा है, हमें 3 4 कैप्टन रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास पार्टी पावर है कि अगर अभी जब
सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के आया था, 395 आर्टिकल है, तो आर्टिकल 396 कर देगी और उसमें लिख देगी कि नोट कि अब हमारे पास दो, अब हम एक एक नहीं, हम कई अनेक अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं, वो नहीं कर सकते। तो वो उसमें, ये मैंने समझा दिया, ये आर्टिकल्स होते हैं, तो वो उसमें अमेंडमेंट करेगी। अमेंडमेंट करेगी मतलब आर्टिकल 76 में जहां ये लिखा है कि एक एक ही अटॉर्नी जनरल बनेगा, वहां को मतलब जैसे ही वो पहले बिल निकालेगी, पहले वो लोअर हाउस मतलब लोकसभा में क्लियर होगा, फिर राज्यसभा में क्लियर होगा, फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, फिर उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन में से जहां ये लिखा है कि एक ही अटॉर्नी जनरल होगा, वो काट दिया जाएगा। वो काट दिया जाएगा और आ जाएगा कि कितने भी अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये नया आर्टिकल नहीं बना, ये एक आर्टिकल में चेंज कर दिया। अगर तुम एक लाइन लिखोगे, एक सेंटेंस लिखोगे, ठीक है, एक पूरा, एक मान लो तुमने एक सेंटेंस लिखा जो 4-5 लाइन का हो, उस पूरे 5 लाइन में तुम एक चीज तुम बोल दोगे कि एक वन को लिख काट के तुम थ्री कर दोगे, तो तुम ये बोलोगे कि ये पूरा पूरा नया सेंटेंस है? नहीं ना। तुम ये बोलोगे कि सेंटेंस में मैंने चेंज किया है, मैंने अमेंड किया है सेंटेंस को। तो नया आर्टिकल, वैसी आर्टिकल मान लो एक वो एक किताब है, एक किताब में नया कुछ नहीं बन सकता, पर एक किताब में चेंजेस आ सकते हैं। तुम्हारे एक पैराग्राफ में तुम नया लिखोगे तो नया तुम बना सकते हो, पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकते। पर नया में को तुम चेंज कर दोगे तो एक नई लाइन नहीं बन जाती, वो एक नए सेंटेंस में वो एक कुछ तुम चेंज कर, सॉरी, वो इसी सेंटेंस में तुम कुछ चेंज करते हो, वो हो गया अमेंडमेंट। ठीक है, कि तुम पहले से जितने आर्टिकल्स है उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो। टोटल 395 आर्टिकल्स हुए थे, उसको कोई बदल नहीं सकता। 396, 397 ऐसे ऐसे करके 500 आर्टिकल ऐसे नहीं बन सकते, तो जितने आर्टिकल्स थे उतने रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आर्टिकल्स होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के अलग अलग, अब तुमने पूछा एक्ट क्या होता है, ठीक है, मैंने तुम्हें बिल बता दिया, आर्टिकल बता दिया। आर्टिकल में अमेंडमेंट होता है। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में ही सिर्फ आर्टिकल्स होते हैं। अब एक्ट क्या होता है, अब हर चीज दुनिया में सारे रूल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहीं नहीं लिखा कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं और मैंने किसी को ठोक दिया और किसी को, और कोई फॉर एग्जांपल उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो मेरे को कितने साल की जेल होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। ठीक है, ये इसके लिए एक अलग एक्ट बना है। ठीक है, और वैसे ही, ठीक है, नॉर्मली अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, और मेरे को कितने साल की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब मेरे को हमेशा के लिए मैं कैदी बन जाऊंगा, मेरे को सूली में लटका दिया जाएगा, कि मेरे को 10 साल में छोड़ दिया जाएगा, ये कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। इसके लिए आईपीसी बना है, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, तो इन सबको एक्ट्स कहते हैं। ठीक है, कि ये अलग अलग एक्ट्स हैं और इनमें इसमें सेक्शन होते हैं। जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, वैसे ही आईपीसी एक इंडियन पीनल कोड, इसमें क्राइम, ये इंडियन पीनल कोड होता है क्राइम के लिए। ठीक है, तो इसमें सेक्शन होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अगर मैं मर्डर करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पे सेक्शन 300 लगेगा। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 300 लगेगा। और मेरे को पनिशमेंट क्या आएगा सेक्शन 302 में, ये सब याद करना नहीं है, मैं स्टोरी समझा रहा हूँ। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में बस आर्टिकल होते हैं, बाकी सारे एक्ट्स होंगे जिसमें सेक्शंस होंगे। ठीक है, अब तुमने बात करी, छोटे में समझा रहा हूँ, इन डेप्थ नहीं जा रहा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं था। इसका इसका अगर तुमने पढ़ा होगा, इसका एसेंस क्या था, इसका एसेंस था कि जो मेरे स्टेट में मतलब दिल्ली में हमारे पास एक चीफ मिनिस्टर है, हमारे पास एक गवर्नर भी है। ठीक है, ऑफ कोर्स सबके स्टेट में एक गवर्नर है, पर बिकॉज दिल्ली acts as in constitution and IPC is in constitution, नहीं नहीं, IPC is not in constitution, constitution हो गया अलग। ठीक है, वो एक अलग किताब है आयुष। ठीक है, बाकी उसके आईपीसी हो गई एक अलग किताब है, आईपीसी अलग किताब है, कंज्यूमर एक्ट एक अलग किताब है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, आईपीसी पूरा अलग है, आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आता। ठीक है, और किसी ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंड जो बिल है उसको पढ़ा होगा, अब वो बिल नहीं रहा। ठीक है, अगर तुमने देखा होगा वो पहले लोकसभा में आई, वहां से राज्यसभा में गई, उसके बाद अगर तुमने न्यूज पेपर पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट ने साइन करा, उसके बाद बन जाएगी वो एक एक्ट। ठीक है, जैसे आईपीसी इंडियन पीनल कोड एक एक्ट है। ठीक है, तो वैसे ही नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ये एक एक्ट बन जाएगा। और इसमें है क्या, ठीक है, इसमें है कि गवर्नर जनरल के पास, बिकॉज दिल्ली एक स्टेट नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, और अगर और इन डेप्थ दिया जाए तो एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। ठीक है, तो इसमें सारे पावर्स, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली इट्स एन एक्ट। ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, इसका मतलब ये, इसका पूरा का पूरा है क्या, ये एक्ट है कि जो गवर्नर है दिल्ली में, जो गवर्नर है उसके पावर्स क्या होंगे। ठीक है, वो क्या क्या कर सकता है, उसको पावर्स पहले
एक्सप्लेन नहीं किए गए थे, तो बहुत कंफ्यूजन होती थी जब हमारे चीफ मिनिस्टर जी, जो कि अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, और हमारे गवर्नर जी, ठीक है, वो कुछ डिसाइड कर चीफ मिनिस्टर कुछ डिसाइड करते हैं तो बोलते थे ये पॉलिसी निकालूंगा, गवर्नर बोलते थे कि नहीं ये पॉलिसी नहीं निकाल सकते और मेरी पावर है मैं मना कर सकता हूँ। फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर जी बोलते थे कि नहीं नहीं ये तुम्हारे पास पावर नहीं है, फिर उसके बाद हर चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया जाता था। तो यही चीज ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये इसलिए ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल निकाला गया, जो कि एक्ट बन गया है। ठीक है, इसमें गवर्नर्स की एग्जैक्ट पावर्स क्या है दिल्ली में, ठीक है, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है क्या क्या नहीं कर सकता, ये चीज इस बिल में बताई गई है। हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे पर अब बाद में। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है एक्ट, बिल, अमेंडमेंट, आर्टिकल में। अगर नहीं समझ आया मैं फिर से बता दो, मैं फिर से समझा दूंगा अगर कोई पर्टिकुलर चीज समझ नहीं आई। राइट, ठीक है। और आई गेस कोई मेरे को ओके, राइट, ठीक है। तो कोई मेरे को कमेंट बॉक्स में उस दिन समवन वाज सेइंग कि वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा जो मैंने एक अपलोड किया था। ठीक है, आई डोंट नो कौन था, मेरे को नाम याद नहीं है। ठीक है, पर कोई डाउनलोड नहीं कर रहा था वो फाइल क्लासरूम से। आई गेस मैंने भी और आंचल ने भी, मतलब वो मटेरियल टीम से उसने एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू डाउनलोड द फाइल दैट वी हैव अपलोडेड। ठीक है, बट अगर फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तुम्हारे पास मेल है, मेरे को एक मेल डाल दो। ठीक है, या फिर सिर्फ वही नहीं, तुम्हारे पास कभी भी कोई क्वेश्चंस है, इंद्रायणी जो सेकंड टीचर है उसके पास भी, या फिर तुम्हें कुछ डाउट फाउट हो, ठीक है, या फिर आई डोंट नो, हाँ भाई नीरज हेड है, नीरज ने कोई डाउट क्लास कुछ रख रखा होगा या फिर नहीं। ठीक है, या तो वो आगे होगा जिसमें तुम इंडिविजुअल क्लास ले सकते हो हमसे। ठीक है, अगर तुम्हें पूछना हो कुछ भी। ठीक है, पर अभी तक अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो, अगर तुम्हें कोई भी फाइल फोल्डर चाहिए, ठीक है, तुम हमें डायरेक्ट मेल कर दो, मेरे को मेल कर दो। ठीक है, या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, मैंने अपना नंबर दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में ही दिया था मैंने। ठीक है, और मैं तुम्हें वो फाइल भेज दूंगा, राइट। ठीक है, बट प्लीज मेरे को मेल या फिर मैसेज इसलिए मत करना, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो छोटा मोटा भी कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा वो समझ नहीं आ रहा, मेरे को मेल कर दो। मैं मेल को मेल या फिर व्हाट्सएप कर दो, मैं तुम्हें एक दिन के अंदर अंदर रिप्लाई कर दूंगा। बट मेरे को ये वाला फोल्डर जो अभी है मैंने समझाया था, ये मत मांगना प्लीज व्हाट्सएप करके या फिर मेल करके, बिकॉज ये तभी मिलेगा जब ये पढ़ा दिया जाएगा। और जब मान लो अगर 2-3 क्लास के बाद ही तुम्हें क्लासरूम में अपलोड कर दिया जाएगा, राइट। ठीक है, तो आई गेस मैंने 10 मिनट आगे बढ़ गया। uh, तो आगे से कुछ क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, तो यू कैन लॉग आउट। ठीक है, थैंक यू, विल मीट अगेन ऑन थर्सडे। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू। हाँ